परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप जी सारियां संगतां नितनेम कर्म अनुसार परमेश्वर दे चरना कमलों की हाजरी भर करके जन्म दे कुछ पल सफलियां करन दे यतन करते हैं। कर बंदे तो बंदगी जिचर घट मह साहो, गुरबाणी का जो महान सिरलेख है कि इस बंदे नूं बंदगी दे विच लगातार लगे रहना चाहिए। सतसंगत करनी एक बंदगी है, सेवा करनी एक बंदगी है, नौदा प्रकार की भगती मन्नी गई है। जिहड़ा हर एक प्राणी की इच्छा हुंदी है कि किवें ना किवें भगती करके जिंदगी के कुछ पल सफले करिए। परमात्मा अकाल पुरख ने मेहर की हुई है, जिस दी बदौलत गुरु दरबार दे विच असीं पहुँचे हाँ। परमात्मा की किरपा तो बिना संगत दीयां घड़ियां जिहड़ियां ने वो हर एक प्राणी नूं प्राप्त नहीं हुंदियां। प्राप्ति हुई है थोड़े जे समय तो वध लाहा हर एक ने प्राप्त करना। अज दा ये शुभ दिन है जो वैसे तो गुरसिख वास्ते सारे दिन शुभ ही मन्ने गए ने, नाल नाल हर एक जिंदगी वास्ते वो दिन शुभ हुंदा है जिहड़े दिन ये शुभ काम करे। जिहड़े दिन भी इहने चंगा काम कीता है वो दिन इहदे वास्ते चंगा ही चंगा है। जिहड़े दिन इहने माड़ा कर्म कीता है वो दिन इहदे वास्ते जिंदगी वास्ते माड़ा ही माड़ा है। चंगे दिन किस नूं कहंदे ने? धार्मिक दुनिया दे विच माड़े दिन किस नूं कहंदे ने? धर्म की दुनिया विच चंगा दिन उही मन्निया गया है जिहड़े दिन बंदा चंगा काम करे जां अपनी चंगी सोच रखे जां किसी का भला करन वास्ते चंगा ये सोच रहा होवे। क्योंकि चंगा सोचना ही मनुख की जिंदगी की एक वड्डी चंगियाई है। क्योंकि मनुख जैसा बाहरों है वैसा ये अंदरों नहीं है, जैसा ये बाहरों है वैसा ये अंदरों नहीं है। ते मनुख की असल सच्चाई वो है जो ये अंदरों है, बाहर की तो कोई सच्चाई है नहीं। देही की बाबत महाराज ने किन्ने वचन किए ने, मिट्टी की ढेरी है, चंगे कपड़े पा के की करेगा, धन कमा के की करेगा, बड़ा कुछ गुरबाणी दे विच असीं सरवण करते हैं ना। मनुख उही है जो ये अंदरों है, असलीयत की जिंदगी उही है। ते जे ये अंदरों सोच रहा है किसी की बाबत चंगियाई कि मैं किसी का भला करना है, चंगा करना है, उन्होंने कहते ने ये मनुख का अज का दिन शुभ है।
ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਤ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਚੰਗਿਆਈ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਬੀਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਦਰ ਭਾਲੀਅਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਝਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਫੁੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫੁੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੜੋਗੇ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੂਟੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਖੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁਬਾਹ ਖਿੜਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਗੰਧੀ बढ़दा ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਝਾਲੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਆਂ ਨਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਆਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਛ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ, ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੱਕਿਆ। ਪਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ
ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ, 5-4 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊ, ਬਸ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੱਕਦਾ, ਆ ਕੇ 5-4 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਨ ਵੀ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, 5-7 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੋਲ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੇ ਜਾਤ ਵਸਾਏ ਉਠਾਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਸੁਪਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ ਨੀਂਦ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ? ਉਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਘਰ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਆਈ? ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਗਰਤ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,
अपनी नींद। वरना जदों ये मनुख बच्चों के रूप दे विच सी, उस वक्त तो लैके मरण समय तक किहड़ी उम्र दे विच किन्नी किन्नी नींद आऊगी, कदों कदों आऊ, किवें किवें आऊ, सारा कुछ गुरबाणी दे विच महाराज ने दर्ज किया। 24 घंटिया दे विचों नव जन्मिया बच्चा 18 घंटिया की नींद आउगी सब तो वध। 24 घंटिया दे विचों इन्ना टाइम सौ सकता बच्चा। यही बच्चा जवान होया, जवानी दे विच होर नींद घट गई। जिमें जिमें समाजिक नियमां विच असीं कहीए कि जिमें जिमें बंदा वड्डा होता तुरया जांदा, उवें उवें नींद जिहड़ी है वो घटदी जांदी है। कारण की है? रब्बी नियम ने। गुरु साहिब जी महाराज फिर इहनूं समझाउंदे जांदे ने भी हुण तेरी नींद होर घट गई, हुण तेरी नींद होर घट गई। जिमें जिमें तेरी नींद घटदी जांदी है, महाराज कहंदे उवें उवें तेरी उम्र भी घटदी जांदी है। रब्बी नियम ने ते सब कुछ परमात्मा कहंदे तैनूं इन्हां नियमां दे विच मिलिया होया है। जिमें जिमें अगाहां वल जांदा, महज तकरीबन वडेरी उम्र दे विच जाके 4-5 घंटिया की नींद रह जाती है। गुरु साहिब जी महाराज अज कहते ने, बंदिया अमृत वेले उठ्या कर, बहुता सौ ना। क्यों? गुरु साहिब जी महाराज कहते बहुता सौ के करेगा कि एक दिन सोबन होएगो लांबे गोंड पसार। बनाने वाले बथेरे होणगे ते इत्थों उठिया नहीं जाना। की गल? बहुता सौ ना तू, बहुता सौण दे नाल तेरे वध तो वध सवास ने जिहड़े वो जिंदगी दे विचों बतीत होने ने। 24 घंटिया दे विच 30,000 सवास तेरा बतीत हो जाना है। बहुता सौ के जिंदगी ना गुजारी। इसे लिए गुरु नानक महाराज जी ने अमृत वेला चुनिया कि इनू गुरसिख नूं अमृत वेला दिता है कि तू अमृत वेले जागना है। ये नींद रब्बी नियमां दे मुताबक जिमें सानू शरीर मिले है, माँ बाप मिले ने, घर मकान मिले ने, इसे लिए जिमें रब ने सानू इन्ना कुछ रैण बसेरे वास्ते दिता है, ऐसे तरह ही परमात्मा ने सानू नींद भी कुदरती नियमां दे विच बख्शी हुई है। ये आउंदी है कुदरती नियमां राही। कोई बंदा नींद खरीद नहीं सकता, कोई भी। ते नींदरा जिहड़ी है ये रब्बी नियमां राही मनुख नूं मिली हुई है। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते देखी किते बहुता समा सौ के ना गुजार दी, अमृत वेले उठ्या कर, अपनी नींदरा का परित्याग करया कर, इनू छड्या कर, इनू छड्डना सिख। हर चिदाउंदी जात वसाए उठालियन। जिस तरह तैनू रब्बी नियमां दे विच नींद मिली, ज्यों तू जाग्या ते नींद चली गई। ना तो तैनू ये पता लग्या कि नींद आई कित्थों, ते ना तैनू ये पता लग्या कि नींद चली कित्थे गई। ना हुण तैनू आउण वाली रात का पता भी आऊगी कित्थों। सब कुछ मिलिया। भाई गुरदास जी ये हवाले देई जांदे ने, रब्बी नियमां दे विच तैनू नींद मिली, ज्यों तू जाग्या ते नींद चली गई। जिमें फुल्लां दे विचों सुगंधी चली गई, दीवे दे विचों रोशनी चली गई, तारियां दी थोड़े समय वास्ते रोशनी आई ते चली गई। ये सब कुछ कुदरती नियमां दे विच हो रहा है। तो अक्सर भाई गुरदास जी ने हुण जिहड़ा शब्द बख्शिया है, ये सारे हवाले दिते ने पहला भाई गुरदास जी ने। उस तो बाद गुरु साहिब जी भाई गुरदास जी कहते गुरमुख सुख फल पाएन, गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन।
कई बारी ना जदों कोई भाई गुरदास दियां इस पंक्ति के अर्थ करदा ना, दिवाली की रात दीवे बाली है ना, ते ओदे आप भी वो बेचारा इहो जिहा हुंदा है ते दूजिआं नूं भी इहो जिहा सुचेत कर दिंदा है कि भाई गुरदास ने कहा है कि दिवाली वाली दिन रात नूं तुसीं दीवे बालिओ, पर ये जिहड़ी सारी वार है भाई गुरदास की, इत्थों वार शुरू हुंदी है। दिवाली की रात दीवे बालियन, इत्थों ये वार शुरू हुंदी है। ते बाकी दी मैं तुहानूं पंक्तियां गाहां सुनाई दित्तियां ने। भाई गुरदास ने ये एक हवाला दिता है कि जिस तरह दुनिया दिवाली की रात नूं दीवे बालदी है, पर अद्धी रात उन्हां दी रोशनी चली जाती है। फुल्लां दी रोशनी, फुल्लां दी सुगंध चली गई, तारियां दी रोशनी चली गई, तीर्थ यात्रा ते जो कुछ तेरे नैणां दे विच आया सी वो चलिया गया तीर्थ यात्रा ते जाके। फिर भाई गुरदास जी कहते ने फिर ये तां सारियां चीज़ां जांदियां ने, एक चीज़ इहो जी है गुरमुखा। भाई गुरदास बचन करते ने, गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालिया ने। हुण एक चीज़ इहो जी है, भाई गुरदास जी कहते जिहड़ी चीज़ दी रोशनी कदे भी तेरे कोलों जावेगी नहीं। सुख लोड़ने ने, असीं कहने परमात्मा सुखां दा फल साडी झोली च पाई। गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालिया ना, जेड़े गुरमुख जन ने ना, वो गुरमुख जन फिर भाई गुरदास जी कहते सुख फल दात, सुखां दी अते फलां दी दात लैंदे ने। पर लैंदे कित्थों ने? शब्द संभाली है ना, गुरु दे शब्द दी जिहड़ा मनुख सांभ संभाल करदा है। भाई गुरदास जी कहते ने कि गुरु दे शब्द दी सांभ संभाल कर, गुरु दे शब्द दे नाम दी आराधना कर। ये सारी दियां सारियां जिन्ना कुछ चलिया, ये सब दे सब अपना सुख दे के, अपना आनंद दे के, चंद मिनटां दी रोशनी दे के चले जाणगे। भाई गुरदास कहते तो गुरु दे शब्द दा नाम अभ्यास कर, तेरी जिंदगी दे विच चानना ही चानना आ जाएगा। ये चानना फिर दोबारे तेरे कोलों कदे जाएगा नहीं, ये फिर जाएगा नहीं तेरे कोलों चानना। आया सी चानना भाई मनी सिंह कोले, गया नहीं दोबारे। आया सी चानना भाई मती दास कोल, सती दास कोल, आया सी चानना मीर मन्नू दी जेल दे विच बीबियां दे कोले। टुकड़े करवा के बच्चों के गलों विच हार पवा ले, पर चानना नहीं गया उन्हां कोलों। गया किसी दे कोलों जिन्हां कोल आ गया। ते हुण भाई गुरदास जी ये कहते ने हुण मर्जी तेरे ते खड़ी है कि तू किस दे नाल जुड़ना है। ये ओ चानने नाल जुड़ना चाहुंदा है, जां चानना चंद मिनटां वास्ते आनंद देवे सुख दे के ते चलिया जावे, जां तू ओ चानने नाल जुड़ना चाहुंदा है, जां उस सुगंधी नाल जुड़ना चाहुंदा है जिहड़ी चंद मिनटां दी आवे ते वापस चली जावे, जां ओ सुगंधी नाल जुड़ना चाहुंदा है जो एक बारी आवे ते तेरी जिंदगी तो दोबारे वापस जावे ना। सुगंधी ही सुगंधी, गुरु दे शब्द ने जिंदगी दे अंदर सुगंधी भर देनी है। फिर जद बोल बोलदा है ना मनुख, इहो जे बोल बोलदा है अपनी जिंदगी दे विचों कि वो सारे दे सारे बोल सुगंधीदार हुंदे ने, सुगंधी छड्डदे ने, सुगंधी छड्डदे ने इहो जे बोल। कि भाई गुरदास जी कहते तू वो सुगंधी इकट्ठी कर जिहड़ी जिंदगी दे विचों दोबारे जावे ही ना। ये दूसरा भाई गुरदास जी ने वचन
ये कीते ने। कहंदे इहो जा अपनी जिंदगी दे विच चानना परमात्मा की किरपा दे नाल लैके आ, जिहड़ा चानना दुबारे जिंदगी तो जावे ना। दीवाली की रात दीवे बालियन, चंद घंटिया की इन्हां दा चानना है, चले जाना है। ते भाई गुरदास जी ने यह हवाला दिता। सिख जगत के अंदर ये दिवाली का दिन अहम मन्निया गया है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं गवालीयर के किले दे विच बंद किया सी कि तुसी पंजाब दे विच बैठ के बगावत करते हो, इस दी बाबत। ते जदों बाबा बुढ़ा साहिब जी संगतां समेत गए तो उन्होंने किले के अंदर ना जाण दिता। मियाँ मीर जी सफल हो गए सी इस गल दे विच, अगाहां राजे नाल जाके गल करन दे विच। उन्होंने गल मन के गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं बाहर आउण वास्ते कहा। महाराज कहंदे नहीं, असी जेड़े इस, क्योंकि सुबह तो शाम दो टाइम उस किले दे विच सी जिहड़ी संगत होण लग गई। जदों छेवें पातशाह महाराज चले गए उत्थे, ते उत्थे संगत होण लग गई। जिहड़े राजे सी उत्थे 52 राजे कैद कीते होए सी। कैदी तां बथेरे सीगे, पर 52 राजे सी जिहड़े कैदी कैद दे विच रखे हुए सी। उन्हां 52 राजिਆਂ ਨੂੰ थम्मां दे नाल बन्निया होया सी, संगलां दे नाल बन के थम्मां दे नाल बन्ने होए सी। वो राजे 52 थंम अज भी गवालीयर दे किले दे विच हैगे ने। आप जी कदे गए हो, दर्शन कीते हो। थोड़ा चंद मिनटां वास्ते उन्होंने छड्डदे हुंदे सी। ते छेवें पातशाह महाराज ने उन्हां दे हालात वेख के ते छेवें पातशाह महाराज कहंदे, जे कहंदे असीं तुसीं इन्हां राजिਆਂ ਨੂੰ छड्डोगे 52 ਦੇ 52 राजिਆਂ ਨੂੰ, ते फिर असीं गवालीयर दे किले दे विचों बाहर निकलांगे, वरना असीं बाहर नहीं निकलना। ते सिख संगतां दा जोर ज़्यादा सीगा कि किवें उहनूं राजे नूं पता लग गया सी कि हुण किवें ना किवें इन्हां नूं बाहर भेजना ही पैना है। संगतां बहुत पहुँच चुकियां सी गवालीयर दे किले कोल। ते फिर छेवें पातशाह महाराज ने उस जगह ते 52 कलियां वाला चोला साहिब पाया सी महाराज जी ने। ते कल्ले कल्ले राजे नूं कहता सी चोले दीयां कलियां फड़ लो। जिन्ने राजे चोले दीयां कलियां फड़ लैणगे सब दे सब बाहर आ जाणगे। सारे राजिਆਂ ने कलियां पकड़ियां ते गवालीयर दे किले दे विचों छेवें पातशाह महाराज उन्हां नूं कढ के श्री अकाल तख्त साहिब ते जदों छेवें पातशाह महाराज आए तो उत्थे दीपावली कीती गई। अज दा शुभ दिन। आप जी नूं तकरीबन इन्हां गल्लां दा इतिहास दा पता है। और उही राजे सी जिन्हां दे अगाहां पुत पोतरे, जिन्हां दे अगाहां आउण वाली पीढ़ी ने, उन्हां सारिਆਂ ने रल मिल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल जंगां करदे रहे। ये रब दा परमात्मा दा अपना रचिया होया कौतक सी। महाराज ने उन्होंने उत्थों कढ़ाया कैद दे विचों, ते इसे खुशी दे अंदर भगवान रामचंद्र जी 14 सालां दा बनवास कट के आए। इसे खुशी अंदर जिहड़ा सी उन्होंने दीवे बाले, खुशी हुंदी है ना। और जिन्ने भी भारत दे विच धर्म ने, सारे धर्मां दा ये सांझा त्यौहार है। हुण इत्थे बचन थोड़ा जिहा आपां दूजे पासे भी लै जाइए कि दिवाली का ये शुभ दिन कोई जरूरी नहीं है असीं अपने पैसों नूं अग ला के मनाउणा है। संजम भी रखना थोड़ा जिहा। बथेरी दुनिया हैगी है, बड़ा धन ठीक है, चलो समय के मुताबिक बच्चे मंगते ने जां होर चाहिदा है। बथेरे तो अज कहणगे अज दिवाली की रात है, अज बथेरे लाउणगे बड़ा कुछ, ते घरे तुहानूं भी पता भी बनेगा भी बड़ा कुछ।
अज बनाउणगे। ते जे उन्हां नूं पुछो भी कातों अज भाई क्यों करदे हो, कहंदे दिवाली है। साडे वाले लाणे नूं कोई पुछे भी दिवाली वाले दिन तुहानूं छेवें पातशाह महाराज ने कहा भी तुसी घरे बैठ के काम करो, खाओ पीओ। साडे विच खुशी है, जे खुशी है तो इहदा मतलब ये नहीं है भी किसी जानवर की जान ले लईए ते जां असीं आप कुछ ना कुछ खा पी के ये जे आप ही भूत प्रेत बन जाइए भी गाहां सारे परिवार नूं तंग करी जाइए। साडे विच ये चीज़ां नहीं है। बथेरी दुनिया दिवाली मनाउंदी है आपो अपने, चलो आपो अपनी मत है, आप अपनी बुद्ध है जेती, आपो अपनी मत सब वरतदे ने। पर साडे धर्म दे अंदर ये चीज़ां वर्जित ने। फिर याद करी जाणगे। बहुती खुशी जदों चढ़ जाती है ना कोई खुशी दे विच इहो जिहा काम कर वैंदे ने, मुड़ के याद करी जाणगे। फिर कहणगे बहुता जिहड़े है कर्जदार हो गए सी, कर्जा बाहला चढ़ गया। फिर पता दोषी किहनूं कहणगे? फिर दोषी कहणगे कहंदे सरकारां ने महंगाई वाली वधाती। जे कोई पागल हो जे असीं तां सियाणे हो ही सकते हैं, नाले सानूं तां जरूर होना चाहिए। साडे कोल तां भाई गुरदास दीआं वारां ने, 10वें ग्रंथ साडे कोल है, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साडे कोल ने, सानूं सिक्ख्या देण वाले, टाइम टाइम ते सिक्ख्या देण वाले, गुरु दा सुनहरी पन्नियां दे विच रचिया होया एडा वड्डा इतिहास साडे कोल है। असीं तां ना पागल बणीए। फिर दोष है जिहड़ा वो दूजिआं नूं। ते असीं कोई खुशी दा समां कोई दिन आ जावे, वो खुशी दे विच असीं इन्ने पागल हो जाने कि चंद दिनां दे विच अपनी सारी कमाई लटा दिंदे असीं, चंद दिनां दे विच। ते गुरु साहिब जी महाराज कहंदे तू ये कर्म ना करया कर जिहड़ा तेरे धर्म दे नाल मेल नहीं खांदा। जिहड़ा तेरे धर्म दे नाल मेल नहीं ना खांदा तू ये कर्म ना करया कर। और ये धर्म दे नाल कदी मेल नहीं खांदा कि तुसी किसी जानवर दी जान लो ते उस तो बाद तुसी उहदे मांस नूं खाओ। धर्म किहड़े धर्म दुनिया दे विच, साडे भारत दे विच, दुनिया दे विच कोई भी धर्म जिहड़ा है इस गल दी इजाजत नहीं दिंदा। कला सिख धर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं इजाजत दिंदा इस गल दी कि तुसी बंदियां तो कुछ ना कुछ इहो जिहा खाओ, कुछ ना कुछ इहो जिहा पीओ जिहदे कारण करके बिल्कुल तुसी पशुआं की तरह बन जाओ। कोई भी धर्म इजाजत नहीं दिंदा। ते बथेरे दिवाली तो 15-15, 20-20 दिन पहले ही मुच्छां नूं ता देण लग जाणगे। दिवाली आ गई, दिवाली आ गई, तू गुरु साहिब जी महाराज के शब्द का अभ्यास कर, कोई चंगा काम कर, कोई शब्द अभ्यास कर। तो गुरु साहिब जी महाराज जी जिहड़ा कुछ तैनूं गुरबाणी कहंदी है, गुरु का इतिहास कहंदा है, ते भाई गुरदास दीआं वारां कहंदियां ने तू वो काम कर। भाई गुरदास की वार मैं आप जियां दे तुहाडे सामने रख दी है कि और यतन किए ने कि जिन्नी कि मेरी बुद्धि है उन्नी कि मैं तुहानूं दे अर्थ भी सुना दिते हैं। दिवाली की रात दीवे बालियन, ते ये चंद घंटियां दी है जिहड़ी, ये चंद घंटियां वास्ते इन्हां ने चलना है, उस तो बाद इन्हां ने खत्म हो जाना है। तारे जात सनात अंदर भालियन, तारियां दी रोशनी, फुल्लां दी सुगंधी, रात दा सुपने दा आउणा, ये भाई गुरदास जी कहंदे सारियां चीज़ां ने ये सिर्फ चंद मिनटां वास्ते तेरी जिंदगी च आउणियां ने। पर जे तू कुछ करना चाहुंदा ना, दीवा बालना है ते बाल। फिर भाई गुरदास जी कहंदे ने वाला दीवा गुरमुख सुख फल पाएन, शब्द संभालियन। गुरु दे शब्द दा दीवा अपने अंदर वाल, जेड़ा अज वालने ते बाद दे विच वो दीवा तैनूं रोशनी दिंदा ही रवे, वो दीवा दे कदे तेल मुक्के ही ना।
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।